اسی طرح کے بیانات سننے کے لیے مولانا منور حسین صدیقی آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ صدق الله مولانا العظيم۔ وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اطاعني فقد اطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله، او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ عزیزان گرامی، محترم طلباء کرام اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء کرام، چیف مہمان، چیف جسٹس اور تمام بزرگان دین، وہ تمام نوجوانان جو ہمارے اس محفل میں شریک ہیں، میں تہہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے، اور اس سے بڑھ کر ہمیں شکر گزار بننا ہے اور شکریہ ادا کرنا ہے ہمارے محلے کے سرکردہ افراد کا، نوجوانان کمیٹی کا، اور ان میں خاص طور سے سر فہرست محترم جناب افروز صاحب کا، محترم جناب ظہیر صاحب کا، اور ان میں سے بڑھ کر بھی ہمارے روح رواں اور مقتدا اس حلقے کے مانے جانی ہستی حضرت مولانا مظفر حسین صاحب المظاہری، جن کی محنت اور کوششوں سے آج یہ دن دیکھنا نصیب ہوا۔ یاد رکھیے، محفل میلاد اور جشن عید میلاد النبی اس طرح کے پوسٹر چلتے ہیں اور لوگ جو ہیں شریک ہو جاتے ہیں جہاں پر شریک نہیں ہونا تھا۔ مثال کے طور پر کچھ علاقوں میں، کچھ ایریوں میں، کچھ قریوں میں اور کچھ محلوں میں جلسے نکلتے ہیں، جلوسیں نکلتی ہیں، ان میں جوان سب جاتے ہیں اور پھر اس میں ڈی جے بج رہا ہوتا ہے، لوگ جو ہیں ڈانس بھی کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک سیرت کے نام سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جڑ جانا، گویا کہ اس خرافات سے بچ جانا ہے۔ بس وہاں جڑتے تھے تو گناہ ہوتا تھا کہ وہ ڈانس یا پھر گانا یا پھر قوالی چلتی ہے، لوگ اس طرح سے اس میں جم گھٹا لگاتے ہیں، جمتے ہیں کہ آنے جانے والوں کی تکلیفیں بڑھ جاتی ہے، مصیبتیں بڑھ جاتی ہے۔ ٹائٹل، نام، لیول ہمارا دیا جاتا ہے میلاد النبی کا، لیکن جو کام کیا جاتا ہے وہ نبی کے طریقے سے بالکل ہٹ کر کیا جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے بالکل ہٹ کر کیا جاتا ہے۔ کوئی نام کی اس میں سنت کی چیز نہیں ہوتی ہے، ہر انسان سنت کو، شریعت کو چھوڑ کر کے کہیں اور کود پھاند رہا ہوتا ہے۔ شکر گزار ہے ان نوجوانان کے لیے اور تعریفیں ہیں ان نوجوانان کے لیے جن کے دل میں یہ بات آئی کہ کم سے کم اس مجمع میں جو بالکل اپوزٹ ہے، بالکل خلاف ہے، شریعت کے نام سے بالکل دور ہے، جہاں پر سوائے گناہ کے کچھ نہیں ہوتا، اس مجمع سے نکال کر کے ہم آپ کو نبی کی باتیں سننے کے لیے، اللہ کا حکم سننے کے لیے، نبی کا فرمان سننے کے لیے ایک جا جمع فرمایا۔ شکر گزار ہیں ہم سب ان تمام اہل جوان کا اور ان تمام اہل محلہ کا۔ قرآن مقدس کی آیت میں نے پڑھا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، بہت مختصر طور پر میں سمجھانے کی کوشش کروں گا اور کوشش یہ رہے کہ ہم سن کر کے عمل کریں، فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔
सुनेंगे, अमल करेंगे, हमारा आना बैठना, वक्त निकालना, परेशानियां उठाना, ये सब कामयाब है। सुन करके अमल नहीं करेंगे तो हमारा सारा का सारा दिन खराब जाएगा। आज नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइशी तारीख है, जिसे मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जाता है। याद रखिए, दो बातें बहुत ही अहम है जो हम सब के लिए ज़रूरी है। एक ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइशी दिन क्या है, इस बारे में लिखने वालों ने, तफसीरों ने, मुफस्सिरीन ने, सीरत निगारों ने और किताब लिखने वाले तमाम उलमाए किराम ने लिखा कि तारीख जो पैदाइश वाली है वो हतमी और फैसला कुन 100%, कोई एक तारीख फिक्स नहीं है। किसी ने कुछ लिखा, किसी ने कुछ लिखा, किसी ने कुछ लिखा, किसी ने 7, किसी ने 9, किसी ने 8, किसी ने 12, किसी ने 17, किसी ने 19, किसी ने 27, किसी ने 29। इस महीने के इन तारीखों को लिखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मुबारक इन तारीखों में हुई। उनमें से अक्सर की राय 9 की है, औरों की राय 12 की है। हम फैसला करते हैं, हम मानते हैं कि चलो 12 को हो गया। क्या? चलो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश 12 रबीउल अव्वल को हो गया। मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल को हुआ। अब आइए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी जिंदगी को देखिए। आप जिस तरह से दुनिया में तशरीफ लाए हैं, आप जिस तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में अम्मा आमीना के पेट से जन्म लिए हैं, इसी तरह से एक ना एक वक्त, एक ना एक लम्हा, एक ना एक दिन आप यहाँ से गए भी हैं। जिसको विसाल नबी कहा जाता है, जिसको वफात नबी कहा जाता है, वो कौन सी तारीख है? वो कौन सी तारीख है? पैदाइश के बारे में मैंने बताया, बहुत सारे अकवाल हैं, उन सब को छोड़कर आप 12 को करेक्ट कीजिए और 12 को पकड़ लीजिए। अब वफात सुनिए, तमाम लिखने वालों ने, किसी ने ये नहीं कहा कि 9 भी है, 8 भी है, 7 भी है, 17 भी है, 19 भी है, 21 भी है, 27 भी है, 29 भी है, 31 भी है। नहीं, सब ने कहा कि वफात 12 रबीउल अव्वल को है। अब सवाल ये है, अगर हम आप नबी की पैदाइश के नाम पर, अगर हम आप नबी के बर्थडे के नाम पर, अगर हम आप मिलाद के नाम पर खुशी मनाएं, हम आप जलसे जुलूस में जाएं, हम आप कव्वालियां बजाएं, हम आप डांस करने लगें, तो गम कौन मनाएगा? जिस दिन नबी की पैदाइश है उसी दिन नबी की वफात है। पैदाइश में फिर भी कई सारे अकवाल हैं, लेकिन वफात में तो सबने 12 लिखा है। तो जहां पर खुशी का मौका है उससे ज्यादा तो गम का मौका होना चाहिए। अगर हम इन पर पढ़ेंगे तो या तो इफरात में चले जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे, या तफरीत में आ जाएंगे, एकदम नीचे उतर जाएंगे। इसलिए हम आपको इहदिनस सिरातल मुस्तकीम अपनाना है। वो कौन से रास्ते, वो कौन सा तरीका, वो कौन सा फरमान, वो कौन सा अक़वाल, वो कौन सी बातें हैं जिन पर हमें आपको अमल पैरा है। याद रखिए, नबी के नाम पर, पैदाइश के नाम पर, मिलाद के नाम पर हम आप जमा हैं, या कभी हमारे दिल में ये दाइया पैदा होता है, शौक़ पैदा होता है कि आज हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, मुझे कुछ अच्छा करना चाहिए। कभी कभार ऐसा लगता है ना कि मुझे कुछ अच्छा करना चाहिए, मुझे कुछ अच्छा करना चाहिए। वो अच्छा आप क्या कर सकते हैं? वो अच्छा आप क्या कर सकते हैं जिसको आप अच्छा कह सकते हैं? अगर आप सही मानों में करने पर उतर जाएं और करें, आप करना चाहिए हम सबको। अगर आपके दिल में शौक और जज्बा पैदा हुआ, आपकी उम्र 30 साल, 25 साल, 50 साल, 60 साल, 45 साल, 70 साल, 80 साल के हैं आप, उसी लम्हे आप यकजा हो जाइए, अलग हो जाइए, घर के किसी कोने में चले जाइए, मस्जिद के किसी कोने में आ जाइए और अल्लाह तबारक व तआला के सामने ये वादा कीजिए, ये पैमान कीजिए, ये अहद लीजिए, ए अल्लाह, मैंने 40 साल गुजारे, मैंने 60 साल गुजारे, मैंने 70 साल गुजारे, मैंने 30 साल गुजारे, मैंने 35 साल गुजारे, और मैं ये सारी की सारी जिंदगी तेरी नाफरमानी में गुजार दिया हूं।
तेरे हुक्म के खिलाफ जा रहा हूँ, तेरे नबी के बताए हुए तरीके के खिलाफ जाता हूँ। ए अल्लाह, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज हमारे नबी की पैदाइशी दिन है, आज मिलाद है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं आपकी नाफरमानी नहीं करूँगा, आपका हुक्म टूटने नहीं दूंगा, नमाजें छूटने नहीं दूंगा, नबी का तरीका अपना कर जीऊंगा, नबी की सुन्नतें अपना कर जीऊंगा। अगर ऐसा करते हैं, अगर दिल में ये शौक आता है और आप वाकईतन ऐसा कर लेते और करना चाहिए, तो यकीन जानिए ये मिलाद, ये बर्थ, ये पैदाइश, ये सीरत, ये जलसा, ये वक्त, ये लम्हा, ये दिन, ये जमा होना सब हमारे लिए कबूल है। अगर हम नहीं संवरते हैं, अगर हम अपने आप को नहीं संवारते हैं, अगर हम कुरान पर नहीं आते हैं, अगर हम नबी की बातों पर नहीं आते हैं, तो 1000 मिलाद आ जाए, 1000 बर्थडे आ जाए, 1000 सीरतों के जलसे कर लिया जाए, 1000 नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैदाइशी तारीख बना लिया जाए, किसी काम का नहीं होगा। संवर जाएंगे जिस पल, जिस दिन, जिस लम्हा, जिस घड़ी, वो पल हमारे लिए सबसे बेहतरीन माना जाए। और कोई आपको आकर संवारे, डंडा मारकर, इसका इंतजार मत कीजिए आप। हैं भाई, हम लोग इंतजार करते हैं कि कोई मुझे डंडा मारे तो हम संवर जाएंगे, नहीं, इसका इंतजार मत कीजिए कोई डंडा मारकर संवारेगा। हमें अपनी जाती जिंदगी का ख्याल आना चाहिए, हमें अपने गुजरते दिन का ख्याल आना चाहिए कि हम 1 साल के थे, आज 25 के हैं, और जो 25 वाले हैं वो 70 के हैं, वो 70 वाले आज मौत के मुंह में हैं। एक ना एक दिन ये जिंदगी हम आपसे धोखा कर जाएगी, हमें मौत आकर दबोच लेगी। उससे पहले अपने आप को खुद संवारने की फिक्र पैदा करना, उससे पहले अपने आप को संवारने की कोशिश करना। वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फक़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। कुरान का ऐलान, अल्लाह ने अवार्ड दिया, अल्लाह ने सनद दिया कि जो अल्लाह की इताअत करे और रसूल की मान कर चले, वमन युतिइल्लाह, जो अल्लाह की इताअत करे, व रसूल, और रसूल की मान कर चले, फक़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, तो यही कामयाब लोग हैं, यही कामयाब ग्रुप है। ये जो आपके अंदर जज्बा, शौक पैदा होगा अपने आप को बदलने का, दीन पर चलने का, अल्लाह के हुक्मों को मान कर चलने का, नबी की सुन्नतें अपना कर चलने का, ये दाइया, ये शौक, ये जज्बा आपको कामयाब कर देगा और आप कामयाब हो जाएंगे। वरना ये जलसे, ये सीरत के महफिलें सजाई जाती रहेंगी, हम आप नहीं बदले तो अल्लाह माफ़ करे, कुछ फ़ायदा नहीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मैं तर्जमा, उसके बाद चूँकि वक्त कम दिया गया है बात ख़त्म करूँगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन अताअनी फ़क़द अता अल्लाह व मन असानी फ़क़द असल्लाह। जो मेरी इताअत करे वो अल्लाह की इताअत करेगा, ऐसा है जैसा कि वो अल्लाह की इताअत कर रहा है, और जो मेरी नफरमानी करता है ऐसा है जैसा कि वो अल्लाह की नफरमानी करता है। हम सब इसको अपने ऊपर फिट कर सकते हैं, अपने ऊपर इसको जमा सकते हैं कि मैं कहाँ कहाँ पर अल्लाह का हुक्म तोड़ रहा हूँ, कहाँ कहाँ पर अल्लाह का फरमान छोड़ रहा हूँ। मेरी नमाजें 5 वक्त है ही नहीं, ऐसा होता है। हमने नमाज़ों को पढ़ा कुछ नहीं है, हमारी उम्र 25, 30, 50 साल की हो गई, नमाजें सारी छोड़ देता हूँ मैं। अब अल्लाह की हम ना आप नाफरमानी कर रहे हैं तो खुद बखुद गोया कि हम रसूल की नाफरमानी करने लगे। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। आए जिसने अल्लाह की नाफरमानी की उसने रसूल की नाफरमानी की, और जिसने अल्लाह की इताअत की उसने रसूल की इताअत की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को मोहब्बत रसूल नसीब फरमाए, सुन्नत रसूल नसीब फरमाए, अपने आप को ऐसे जलसों में लाकर संवारने की तौफीक नसीब फरमाए। रब ताला जीते दम तक, मरते दम तक सुन्नत रसूल से मोहब्बत नसीब फरमाए। आमीन व मा अलैना इल्लल बलाग। आमीन।